देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। I welcome the Honorable Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman ji, Minister of State Finance, Sri Anurag Thakur ji, Secretaries from the Ministry of Finance, and my friends from media. After the announcement of the first tranche of stimulus package of rupees 20 lakh crore, the Finance Minister is going to share more details of the package under mission Atmanirbhar Bharat announced by the Prime Minister. First, the Finance Minister and MO's Finance will brief. Later on, we will take more questions from you. Ma'am, please. Good afternoon, friends. आपका स्वागत है। Today is the second tranche of announcements towards building a Atmanirbhar Bharat. आत्मनिर्भर भारत का आज Slides will go on, but before घोषणाओं का we दूसरा start दिन the है। slides, just want to let you know that today's initiatives, which are getting announced as a part of the second tranche that we are announcing today, focuses on migrant workers, आज का जो भाग है वो माइग्रेंट street वर्कर्स, vendors, सड़क small पर traders, जो वेंडर्स हैं उनके लिए, self-employed people, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और जो छोटे उद्योग वाले लोग हैं, और when I say small किसान, farmers, उनके लिए छोटे किसान। there are a few items we say. So in all, about 9 steps that I will be announcing today, करीब 9 कदमों की 3 relating to हम migrant workers, आपको बताएंगे जानकारी। 3 One माइग्रेंट वर्कर related पर to होगी, the Sishu loan within Mudra, एक होगा शिशु लोन one मुद्रा के अंदर, related to street vendors, एक स्ट्रीट वेंडर के ऊपर one जानकारी होगी, housing, एक हाउसिंग पर होगी, one related to employment generation largely for tribals and in those in the tribal pockets, एक रोजगार को लेकर and जो two आदिवासी related हैं to उनके लिए, farmers, particularly और 2 किसानों के लिए। But even as I say this, since you have been keenly listening and hearing what we are saying, many of them may have overlaps with the next package that we'll announce. So on farmers, for कई ऐसी चीज example, होंगी जो पहले it's not वाले as though I'm पैकेज giving के only ऊपर 2 steps, आपको nothing लगेगा more, ओवरलैप कर रहा किसानों है। के लिए जोड़ देगा, no. There मिसाल will के be तौर more. पर But today I'm अगर bringing किसानों in की 2. बात की जाए तो पहले की Just घोषणाओं as के I साथ said, वो शायद in कुछ each मिल of the जाए। package, we'll keep in mind and prioritize concerns related to migrant workers. हमारे लिए poor, सबसे बड़ी those who are जानकारी हम जो देना चाहते हैं वो प्रवासी मजदूरों के लिए है। Therefore, that will continue. So, if I have not spoken about a certain thing today, it's not as if government of India has forgotten. After all, let's अगर कोई ऐसी चीज जो remember, हमने नहीं जिसकी घोषणा की आज, उसका मतलब ये नहीं कि हम भूल गए within hours हैं, of लेकिन हम having उसको announced the कुछ lockdown, समय के अंदर ही the Pradhan उसके बारे में Mantri जानकारी दे Garib देंगे। Kalyan Yojana was for the poor. लॉकडाउन was होने के for अंदर transferring प्रधानमंत्री गरीब cash कल्याण to the योजना जो poor, कुछ ही was घंटों for में giving घोषणा की grains गई to वो the गरीबों poor के लिए ही and थी, so on. And that's not enough. We will come with more. और वो खाली We पर्याप्त are नहीं थी, तो इसलिए हमने announcing सोचा कि और सारी So, चीजें लेकर आएं, और अभी let's हम not और look at सारी each चीजें one of the लेके silo आते as though रहेंगे। that was आप only कृपया the ऐसा only ना thing. सोचें कि आज जो घोषणा As I या कल said जो घोषणा earlier, हो गई वो there are एकदम tranches of announcements. फाइनल है, Many उसके things अलावा that भी बहुत सारी overlap, चीजें many हैं of जो हम them बताते might रहेंगे। get mentioned here as well as mentioned once more somewhere else. So just a broad understanding on that. तो आपको ये एक बताना जरूरी था, आपके संज्ञान And में ये बात before लानी I get to आवश्यकता थी। talking about what we are doing on the migrants, I just want to let you know that about 3 crore farmers had availed loans which were given to them earlier. in आपको बताना concession, जरूरी है कि किसानों ने करीब which was direct support to 3 farmers. करोड़ किसानों ने जो लोन उनको And दिए गए थे those 3 crore वो उन्होंने farmers ले लिए, had availed of agricultural loans और इन्होंने which were एग्रीकल्चर लोन का जो over 4 इस्तेमाल कर लिया था। lakh crores. 3 crore farmers who are marginal farmers had already benefited from 4 lakh crores. 3 करोड़ किसानों ने 4 लाख करोड़ का जो लोन है वो ले लिया है। ये वो मार्जिनल यानी छोटे किसान हैं।
through the Reserve Bank, were also given a moratorium. For the next 3 months, you don't have to pay your EMI and so on. Now, interest subvention, which is normally given for prompt repayment in time, was extended till March. Now we are extending it up to 31st May 2020. जो इंटरेस्ट रीपेमेंट की तारीख थी वो मार्च से हमने 31 मई तक बढ़ा के कर दी है. For that we are giving a bit of an extension. And in the last 2 months, 25 lakh new Kisan credit cards पिछले 2 महीनों में which दो entails that they can take 25 concessional लाख credits. नए किसान They're क्रेडिट कार्ड दिए actually गए हैं. marginal farmers. So we've not forgotten them. And those 25 lakh new Kisan credit card holders have also been given or sanctioned a loan. 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड पिछले 2 महीनों में दिए गए हैं. These are recent happenings. ये अभी So they की may have been जो a lockdown. गतिविधियां हैं वो बता रहे हैं हम But the आपको. government was not sitting quiet. It has been attending to a lot of those who are in the margins of our society, who are desperately in need of assistance to carry on with their small work. So that is something which I want to draw your attention to before we move on to today's package. 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जिनकी 25,000 की लिमिट है वो सैंक्शन किए गए थे. मीडिया के अपने मित्रों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत इस संकल्प को, इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है. पिछले 2 दिनों में पूरे देश भर में आपने चर्चा को बदला है, एक सकारात्मक सोच खड़ी हुई है. इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं. अगर 2014 में भी देखें तो मोदी जी ने अपने सबसे पहले भाषण में यही कहा था कि ये उनकी सरकार वो जो गरीबों के लिए सोचे, जो गरीबों को सुने, गरीबों के लिए जिए. और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है, युवाओं को, महिलाओं को समर्पित है. गांव हो, गरीब हो, पीड़ित हो, वंचित हो, ये सरकार उनके लिए है. हमें गरीब से गरीब आदमी की मदद करनी है. और पिछले 6 वर्षों में आपने देखा होगा इस देश में गरीबों के उत्थान के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किया. मैं उन योजनाओं पे आज नहीं जा रहा, लेकिन किसान की बात कर रहे हैं. पीएम किसान सम्मान की बात हो, 6,000 हर किसान के खाते में. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, सॉयल हेल्थ कार्ड की बात हो. जो गरीब कभी अपनी इंश्योरेंस के बारे में नहीं सोचता था, 22 करोड़ से ज़्यादा गरीबों की इंश्योरेंस करवाने की बात हो. गरीब का बैंक खाता बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के बाद भी नहीं खुलता था, उन बैंकों का उनका बैंक खाता भी खुला. और इस कोविड-19 की स्थिति में अगर सीधा खाते में पैसा किसी ने भेजा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पारदर्शिता के कारण भेजा. तो गरीब की हर समय चिंता किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने. और कल भी जो आपकी चिंता का विषय था, और हम सब भी देखते हैं कि जो गरीब वापस भी जा रहा है उसकी मदद कैसे की जाए, तो आज हम आप सबके सामने आए हैं. कल एमएसएमई सेक्टर की मदद की तो 12 करोड़ लोगों को ये मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग रोजगार देते हैं. अगर उनकी मदद हुई तो अप्रत्यक्ष तौर पर गरीब मजदूर की मदद भी कल की गई. और कहीं ना कहीं जो इतना सकारात्मक वातावरण बना, लोगों के पॉजिटिव मैसेज आए कि ये अच्छा हुआ, इससे उद्योग को फ़ायदा मिलेगा, छोटे उद्योगों को फ़ायदा मिलेगा, तो इससे गरीब को भी बल मिलेगा. तो आज का जो हम करने जा रहे हैं गरीब के लिए, प्रवासी मजदूर के लिए और 1-2 बिंदु किसानों के लिए, आज बाकी अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबके सामने आएगा. तो इसमें मुझे केवल इतना ही कहना है, और मोदी जी ने इसको 12 तारीख को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति में, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता है. और इसमें अगर देखा जाए तो जो पहली घोषणा है जो हमने अब तक कदम उठाए वो लगभग 3 करोड़ किसानों के लिए जो कृषि ऋण है वो 4,22,000 करोड़ के वो अवेल कर चुके हैं. पिछले 3 महीनों में उसके लिए लोन मोरेटोरियम दिया गया है ताकि उनको उसमें छूट दी गई है कि 3 महीने तक उनको वापस नहीं करना है.
इंटरेस्ट सबवेंशन दी है, ब्याज पर सहायता दी है, त्वरित भुगतान यानी कि प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करने पर इनको इंसेंटिव दिया है, क्रॉप लोन्स पर, और ये भी जो 1 मार्च से उनकी ड्यू थी उसको बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है, जिस पर जो ऋण की लिमिट होगी वो 25,000 करोड़ होगी। Again, one more thing which I'd like to draw your attention before I go to today's announcements. Liquidity support for farmers and for the rural economy has been happening in the last 2 months. I'm referring आपको बताना only चाहेंगे to कि those things रूरल which have इकोनॉमी happened in March, और April. किसानों के लिए लिक्विडिटी COVID सपोर्ट duration. पिछले 3 महीने से चल रहा The है। time when COVID hit us and hit us so badly, resulting in a lockdown. But even then, activities through the banks have been happening. लॉकडाउन के दरमियान भी Draw your attention चाहे तो that रूरल एक्टिविटीज की बात की 63 जाए, lakh loans बैंकों की तरफ से वो Of दिया जा रहा है। 86,600 crores 63 have been लाख approved लोन in agriculture और वो भी area 86,600 between 1st March and करोड़ 30th के of April. किसानों के लिए लोन Again, दिए जा चुके हैं। refinancing of 1 मार्च 2020 से लेकर 30 अप्रैल तक has been provided रीफाइनेंसिंग by 29,500 करोड़ की नाबार्ड के जरिए और कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक के जरिए मार्च 2020 में की गई। Just in March, just only in March, NABARD has refinanced 29,500 crores through the rural cooperative banks and the regional rural banks. Then again, you know, rural infrastructure, also through a fund which is operated by the NABARD. रूरल is the इंफ्रास्ट्रक्चर फंड RIDF, जो which is स्टेट्स the को दिया Rural जाता है, वो जो Infrastructure नाबार्ड जिसे ऑपरेट Development करता है, Through उसने this, करीब only again in March 2020, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के a लिए support of 4,200 4,200 करोड़ का सपोर्ट दिया गया। rural infrastructure. So rural areas and their infrastructure work is also being provided for यानी कि रूरल in March इलाकों alone में, with ग्रामीण to the इलाकों में extent जो of इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी काम चल रहा था और उसकी फंडिंग की अगर बात की जाए तो 4,200 करोड़ उसके लिए दिया गया मार्च 2020 तक। State governments do also get working capital assistance. आपको सुनकर अच्छा लगेगा और पता होगा आपको कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी हैं उनको भी वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस मिलती हैं और उन्होंने भी करीब 6,700 करोड़ सैंक्शन किया, क्योंकि एग्रीकल्चर यानी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोक्योर करने के लिए, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने वर्किंग कैपिटल 6,700 करोड़ सैंक्शन किया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोक्योर करने के लिए। To do the agricultural produce procurement. That again is money going into the hands of the people in the ground, particularly in the rural areas. I'll go over to the urban poor, but before that in Hindi. कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता है पिछला सीजन भी 2 महीने देश के लिए भी और देश के कृषि की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, तो उसके लिए पिछले मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए, जिसकी लगभग जो अमाउंट है वो 86,600 करोड़ रुपया है और इससे बल कृषि क्षेत्र को मिला है। विशेष तौर पर किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। गांव में कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपया के रीफाइनेंस का प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 4,200 करोड़ रुपए का सहयोग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से राज्यों को ये मार्च में राशि उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा जो फसल की खरीद, कृषि उत्पाद की खरीद के लिए 6700 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल भी, कार्यशील पूंजी भी राज्यों को उपलब्ध करवाई गई है। I spoke about the rural areas, rural poor, rural money reaching the hands of the farmers and so on. Now I just very quickly mention about urban poor. In just the last 2 months, again, during the COVID period, again, what activity has happened?
to reach out to the urban poor, which includes migrants. Government of India has permitted state governments to utilize अब बात होगी शहरी गरीब इंसान की, यानी अर्बन पुअर। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से तैयार किया जाता है, जिसमें जो माइग्रेंट्स हैं, प्रवासी हैं, उनके लिए खाना, पानी और रहने के लिए, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 11,002 करोड़ इन एडवांस में दे दिया है ऑन 3 अप्रैल को। SDRF यानी स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड होता है, जिससे जो प्रवासी होते हैं उनको खाना, पीना और रहने की जगह मिलती है, उसके लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल तक 11,002 करोड़ सैंक्शन कर दिया है एडवांस में ही। शेल्टर होम्स which are under the shelter for urban homeless category, that is something which normally is there. But in those shelter for urban homeless, 3 meals are provided entirely. जो शेल्टर दिया जाता है अर्बन होमलेस को, यानी कि वो जो शहरों में जिनके पास घर नहीं है, उसमें उनको 3 वक्त का खाना मिलता है। वो मार्च 28 से उनको दिया जा रहा है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम हमारे जो प्रवासी हैं उनकी चिंता कर रहे हैं और उनको पूरी तरीके से उनका खान पान का ध्यान रख रहे हैं, और वो जो हैं अर्बन होमलेस, उनको 3 वक्त का खाना दिया जा रहा है। शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस SUH जो स्कीम है, मार्च 28, 2020 से 3 meals are being provided for people who are urban homeless. Now, the other thing, you may recall when the Prime Minister addressed the nation, how India's capacities can be utilized so that we can serve the globe, and how those capacities are lying dormant, and we are the ones who have to give the stimulus. All of us will have to. 12,000 self-help groups all over the country. This is an example which हमने 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हैं। 12,000 SHG groups have produced over 3 जो crore of करीब 3 masks करोड़ मास्क बना चुके and हैं 1.2 और lakh liters of sanitizers. 1.2 लाख लीटर का सैनिटाइजर बनाया है। And the self-help groups in urban centers are ये अर्बन पुअर जो है उसको दिया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है, उन्होंने 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने 3 करोड़ मास्क और 1.2 लाख लीटर सैनिटाइजर बनाकर उसका वितरण किया है अर्बन पुअर में। revolving funds to the SSGs, and these revolving funds for the self-help groups have also become on board a Paisa portal. It is called PA. रिवॉल्विंग फंड जो है, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिया जाता है, पैसा पोर्टल में अप्रैल 2020 में पायलट बेसिस पर गुजरात में शुरू किया गया, और अब उसको पूरे राज्यों में मई 2020 में किया जा रहा है। यानी कि रिवॉल्विंग फंड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिया जाता है, उसको पैसा पोर्टल के जरिए अप्रैल 2020 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुजरात में दिया गया, अब हर राज्य में दिया जाएगा मई में। 7,200 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अर्बन पुअर के लिए बनाए गए हैं 15 मार्च से। Self-help groups for whom assistance get given, and they get benefit from revolving funds and so on to catch on with what they want to do for their livelihoods. So during these 2 months, COVID period, you have these activities which have happened with central government participating actively in these 2 months only. प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब, ये चर्चा का विषय पिछले कुछ दिनों में भी रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में भी इनके किया, और इस समय में तो विशेष तौर पर हम लोगों ने आपदा राहत के माध्यम से जो फंड, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के माध्यम से उपलब्ध, उनको हमने राज्यों को करवाया। ये लगभग 11,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, ताकि इन लोगों को इसमें से राहत दी जा सके, आपदा राहत हो सके, उसके लिए इस्तेमाल किया गया। और यही नहीं,
हाइजीन का ख्याल रखते हुए 3 मील्स एक दिन में प्रति व्यक्ति के लिए इन शेल्टर होम्स में उपलब्ध करवाएगी, ऐसा प्रावधान वहाँ पर करवाया गया। और जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, जिसको आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी कहते हैं, ऐसे 12,000 स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क और 1,20,000 लीटर सैनिटाइजर्स का उत्पादन किया है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इस संकट की घड़ी में हमारे काम और एक बड़ा काम देश के लिए स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों ने किया है। यही नहीं, 7200 नए स्वयं सहायता समूह इस समय में बनकर और शुरू हैं पिछले 2 महीनों में। और जो रिवॉल्विंग फंड सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए पैसा एक पोर्टल के माध्यम से हमने शुरू किया था गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट, अब उसको पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में शुरू किया जाएगा ताकि इनको और लाभ मिल सके। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब हमने घोषणा की थी तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए उसकी लिमिट कर दी थी, तो इससे भी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद मिलेगी। There's definitely a lot of concern and a legitimate concern about migrant workers now going back to their respective states. And will they be there without any opportunities to earn their livelihood? So I would like to draw your attention to say that you know that we had announced the increase in the average wage rate from 182 to 202 rupees. I had made an announcement once earlier. Now, the question of these people returning to their states, will they stay without any provisioning? We have already generated 14.62 crore man days or person days of work generated up to 13th May. 13 मई तक हमने 14.62 करोड़ पर्सन डे ऑफ वर्क जनरेट कर लिया compared to last May. So when there was no COVID, what was the number? It is at least 40 to 50% more than what it was before. We have enrolled all of them. We are making provision through the Rural Development Ministry to ensure that they get enrolled, they get work, they get the due payments. So work offered is now to 2.33 crore wage seekers. I think the data is of yesterday, in about 1.87 lakh gram panchayats. So the migrant workers who are going back, and if in case they are joining the Manrega, they are being actively enrolled and provision through the respective ministries being done, and they are being taken. We've ensured that they're going to be entertained even there. They're not going to be sitting for wanting of some basic work. States and union territories have been advised to provide work to these migrant workers. परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।